اور جب تک میں زندہ ہوں میں نے ان کو، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، نہ کبھی کوئی NRO ہوگی، نہ میں ان کو معاف کروں گا جب تک میں ان کا پیسہ واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ میں کبھی جدوجہد نہیں روکوں گا اپنی۔ میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے، میں محنت کر کے آیا تھا۔ تو بلاول صاحب، آپ کی حکومت کے اندر تو 4 سورما وزیر خزانہ بدلے، ایک ایک سورما بھیجتے گئے، ایک ایک ناکام ہوتا رہا، ایک ایک گھر جاتا رہا۔ اگر ہم ناکام ہیں تو آپ کیا تھے؟ کیا آپ محل ترین تھے؟ کیا آپ ناکام ترین تھے؟ پاکستان کی تاریخی گورنمنٹ ہے، جس نے کہا تھا قرضہ ہم نہیں لیں گے۔ آپ پاکستان کی وہ گورنمنٹ ہے جس نے 6 مہینے کے اندر 8 بلین لون لیا۔ جناب اسپیکر، کیا مقابلہ ہمارا کریں گے ان کے بعد؟ کہاں راجہ بونچ، کہاں گنگو تیلی؟ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقوی۔ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی کابینہ یوں اکانومی کے فرنٹ پر ویسے ہی تنقید کا نشانہ بن رہی تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کابینہ کی ری شفلنگ کی اور اس کے بعد اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ انہوں نے جو 8-9 ماہ سے چیخ رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی اکنامک ڈائریکشن نہیں ہے، بالآخر عمران خان صاحب نے مان لیا اور اپنا وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد جس کو لگایا وہ وہی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مشیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ آج ایوان میں ان تمام چیزوں پر تو بات ہو ہی رہی تھی، لیکن اس پورے پس منظر کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب تنقید ہٹی تو ایوان میں پہلے بھی ہم صرف اور صرف احتساب کا ذکر کرتے تھے، وہی سنا کرتے تھے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے۔ اب بھی ایوان میں کچھ مختلف حالات نہیں ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور اب تو بات ذاتیات پر اتر کر آ گئی ہے۔ یعنی آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وانا میں، ساؤتھ وزیرستان میں وہ گئے، وانا کے علاقے میں جا کر انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وانا میں جس قسم کی پسماندگی ہے اس کو موجودہ حکومت جو ہے وہ اوور کم کرے گی۔ بجٹ کے بھی اعلان کیے، اکنامک ڈائریکشنز بھی بتائیں اپنی وانا کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ایک مرتبہ پھر NRO کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی حکومت گرانے والے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے NRO حاصل کر لیا جائے، لیکن وہ جب تک زندہ ہیں، جس نے قوم کی دولت لوٹی ہے وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور احتساب تو ہو کر رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں جس طرح سے انہوں نے پکارا یا جس لقب سے نوازا وہ یقیناً بلو دا بیلٹ تھا، جس پر ہم نے سوشل میڈیا پر چاہے وہ صحافی حضرات ہوں یا پھر مختلف پولیٹیشنز ہوں، اینالسٹ ہوں، عام پبلک ہو، انہوں نے کافی اس پر اعتراض بھی کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ اب یہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ کہلائے گی، کیا کہلائے گی یہ تو واضح میرے خیال سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے، لیکن اس سلپ آف ٹنگ کی اگر آج میں ذکر کروں تو سندھ اسمبلی میں کچھ حالات مختلف نہیں تھے۔ سید آفریدی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح سے پکارا، جس کے بعد کافی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی MPs تھے انہوں نے بڑا اعتراض بھی کیا اس پر، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی زبان اگر ایوانوں میں یا اس قسم کی ذاتیات پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹویٹر پر آ کر یہ کہا ہے کہ جب بھی ہم موجودہ حکومت کو ان کی جو ناکامیاں ہیں یا جو ایشوز ہیں عوام کے ان پر توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ایوان نہ چلیں، یا پھر یہ اپوزیشن ہے جو اس طرح سے نقطے اٹھاتی ہے کہ جس پر پاکستان تحریک انصاف کی زبانیں پھسل جاتی ہیں؟ آج اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمیں بات تو اب کرنی چاہیے کسی قانون سازی پر، کسی قانون پر، عوام کے مسائل پر، لیکن کیا کریں جب ایوان ہی سیریس نہیں تو باتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پاکستان تحریک انصاف سے مسرت چیمہ صاحبہ، پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں۔ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ آج پنجاب کے گورنر نے بھی پریس کانفرنس کی
और एक मरतबा फिर सब ने मिलकर उस्मान बुज़दार साहब पर एतमाद का इजहार किया, इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन। आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें कराची में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सईद इलाही, तज्ज़िया निगार हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। बार बार प्राइम मिनिस्टर ये रिएटरेट करते आ रहे हैं कि आप लोग जितना भी जोर लगा लें ऑपोजिशन मिलकर, चाहे वो बात आप हुकूमत गिराने तक भी ले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बता दिया है कि कोई भी सूरत हो गई एहतसाब से वो पीछे नहीं हटेंगे। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया नादिया। अगर तो वज़ीर आज़म पॉलिटिकल प्रोसेस से आते और ये पार्लियामेंट के इजलास ही अटेंड कर लेते जब इन्हें जनरल मुशर्रफ की अता करदा सीट के ऊपर मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया था, और कोई कानून पढ़ लेते, इवन प्राइम मिनिस्टर का हलफनामा पढ़ लेते, तो 50 गलतियाँ न करते। और अगर आज भी जानते कि आइन और कानून क्या है तो उन्हें ये बात समझ आती कि पाकिस्तान के आइन के तहत एहतसाबी इदारे जो हैं वो एहतसाब कर सकते हैं, हुकूमत का इख्तियार एहतसाब करने का नहीं। वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि वो कहे कि मैं एहतसाब करूँगा। तो जब नैब आज़ाद इदारा है, पहले तो आपने गलती ये की कि उसका एक स्पेशल असिस्टेंट बना के आपने खिलाफ वर्जी की है कानून की। एक आज़ाद, जैसे कि कोई वज़ीर अदलिया बना दिया जाए और फिर उसे अदलिया के ऊपर रख दिया जाए, तो इस तरह से तो मुल्क के अंदर इदारे नहीं चलेंगे। अगर एहतसाब का निज़ाम, नैब एक आज़ाद इदारा है तो उसे एहतसाब करना है। तो ये जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, ये पता नहीं कौन इन्हें बता देता है, करने के काम करते नहीं हैं और दूसरी तरफ लगे हैं एहतसाब। अच्छा, एहतसाब तो आप कर नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बता दें कि किसी भी जमहूरी मुल्क में या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म माफ़ किस तरह कर सकता है? भाई, अदालतों के अंदर जो केसेस चलेंगे, वो तो जनरल मुशर्रफ था, उसका एक वो डिक्टेटर था, उसने उस वक़्त एक साइन किया, मियाँ साहब की सज़ा माफ़ करके भेज दिया। अदरवाइज़ ये किस तरह कर सकते हैं? हमें कोई कानून बताए ना कि किस कानून के तहत ये माफ़ कर सकते हैं। इतने बाख्तियार ये कब हैं? ये तो खुद कभी किसी के पाँव पकड़ के हुकूमत में आए हैं और आज भी अपनी अक्सरियत को कायम रखे हुए एक तलवे चाट चाट के ये बैठे हैं। जिन्हें कल तक ये डाकू कहते थे, आज उन्हें ये लीडर कस्टोडियन ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली में बना बैठे हैं। जिन्हें ये कातिल और फसादी और दहशतगर्द कहते थे, आजकल उन्हें कहते हैं ये जी मेरी कैबिनेट के ये 2 मोस्ट डिसेंट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैं। बात तो ये है कि वो जो एनआरओ का जिक्र बार बार कर रहे हैं, उनका मकसद यही है बताने का सबको कि ऑपोजिशन किसी ना किसी तरीके से एनआरओ मांगने की सारी काम करती है, एंड दैट्स व्हाई यू नो इट गोज टू हिम। नहीं नादिया, देखें, आज तक शेख रशीद इनका सबसे बदजुबान वजीर है, वो हमेशा कहता है कभी हमारा नाम नहीं। हमने कब एनआरओ मांगा है? ये जो एक एनआरओ बीबी ने जो बात की थी, वो एनआरओ था मुल्क में वापस आने के लिए, मुशर्रफ की वर्दी उतरवाने के लिए। अदरवाइज आसिफ अली जरदारी ने साहब ने तमाम केसेस का सामना किया है और बेगुनाह 12 साल जेल काटी है। बात ये है कि अगर तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट, अगर तो वजीर आजम एहतसाब कर नहीं सकता, माफी दे नहीं सकता, तो ये किस तरह रोज आके ये बातें? असल में इनकी परफॉर्मेंस जीरो है और खुद मान लिया इन्होंने कि 9 महीने के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। खुद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नकारा लोग थे, नालायक लोग थे, नकम्मे लोग थे, मैंने इन्हें बदल दिया। तो ये नकम्मे, नकारा, नखट्टू, नाअहल और इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब बताने को परफॉर्मेंस के खाते में तो कोई बात नहीं है, जीरो। अच्छा, तो अब इनके पास यही है कि गाली बकें। अच्छा। और आखिरी मैं बात खत्म करूंगा, पैगंबर पाक का फरमान है कि जिंदगी अपनी खूबियों पे गुजरती है, किसी की गलतियों के ऊपर आपकी जिंदगी नहीं गुजरती। लेकिन क्योंकि इसका ना तो किसी मजहब से, ना इखलाक से, ना सियासत से, ना तारीख से, किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, तो क्या करें? बड़ी बदनसीबी है कि मुल्क के अंदर ऐसे लोग हुक्मरान बन। बैरिस्टर साहब, आपने अपना पूरा मौक़िफ़ दे दिया एनआरओ से रिलेटेड। मुसर्रत चीमा साहिबा, मैं जो एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो आपको और डॉक्टर सईद इलाही को शामिल गुफ्तगू करूंगी। बट माई क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स द सेम कि ये ऐवान कौन नहीं चलने दे रहा, ये पार्लिमानी सिस्टम कौन नहीं चलने दे रहा? अपोजिशन है या हुकूमत है? ये कब चलेगा, कब काम होगा, कब अवाम के इश्यूज़ पर बात होगी और कब हम इस चीज़ से निकलेंगे? बैरिस्टर साहब की बात ये बिल्कुल ठीक है कि एहतसाब वज़ीर आज़म कर नहीं रहे, माफ़ी वो दे नहीं सकते, तो फिर बार बार एनआरओ का जिक्र क्यों? लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ हैं, बैरिस्टर आमिर हसन हैं और मुसर्रत चीमा साहिबा हैं और हम बात कर रहे हैं आज होने वाली इन डेवलपमेंट्स पर। जी मुसर्रत साहिबा, पहले तो ज़रा ये वजाहत कीजिएगा, आप भी देख रही होंगी कि ट्विटर पर बहुत सारे रिमार्क्स आ रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगा, प्राइम मिनिस्टर का ये स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा होता जा रहा है लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप इसको इसी तरह ही लीजिए कि ये स्लिप ऑफ टंग था। उसकी वजह यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से अक्सर क्या फिर जरदारी साहब ने जब उनको मोहतरमा भी कह दिया था बिलावल भुट्टो साहिबा के साथ, और एक दफ़ा तो अनफॉर्चुनेटली इनकी पुप्पो ने जलसे में स्टेज पे बिलावल भुट्टो शहीद कह दिया, जिस पे शैला रजा के एक्सप्रेशन पे पूरे मीडिया में जिस दिन तहलका मचा। तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि खुदा ना खास्ता वो उनको शोहदा में कंसिडर कर रही हैं जीते जागते नौजवान बच्चे को। तो कहने का मकसद ये है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ड्यू टू बेनज़ीर खुर्शीद शाह साहब और इनकी पार्टी लीडरशिप अक्सर उनको बिलावल भुट्टो साहिबा कहती रहती है। अदरवाइज इसमें अगर उन्होंने तज़हीक का निशाना बनाना होता तो कुछ और नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते थे, जो कि नहीं हुए। जहां तक बात रह गई, देखें बदजुबानी की बात वो लोग करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो खुद जिस वक्त वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हो ना तो तमीज से बात करें। मतलब पाँव में पढ़ के तलवे चाट के ये कौन सी अखलाकियात वाली जुबान है, और उसके साथ कह दिया जाए शेख रशीद साहब बड़े बदजुबान थे। फिर इमरान खान साहब को वो लोग आके माशाल्लाह से टॉक शोज में पॉलिटिक्स सिखाएं जिनकी अपनी जमानतें जब्त होती हैं और जिनको 200-400 से ज्यादा वोट नहीं मिलता। अगली जहां तक बात रहेगी, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि चीजें परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज देयर और उसके 1 करोड़ 1 रास्ते हैं, लेकिन आप आके किसी पे पर्सनल अटैक करें पहले और फिर अगले से एक्सपेक्ट करें कि कोई नहीं करेगा, ऐसा होता नहीं है। नहीं, लेकिन पर्सनल अटैक कौन कर रहा है? यू आर सेइंग कि ऑपोजिशन स्टार्ट्स विद अ पर्सनल अटैक? नहीं कि जी सिलेक्ट, देखें मेरी बात सुने नादिया, सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर अगर वो हैं तो ये सिलेक्ट थे सीईओ अपनी जो चेयरमैन बने, बिकॉज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जिंदगी में उनके जितने इंटरव्यूज देखे वो तो कहती थी आई विल कीप हिम अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ये तो इनके पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है। बने ओके, उसके बाद सिंध में फिर ये कैसे इलेक्ट होके आ गए सेम इलेक्शन में? फिर अगर सिलेक्ट थे तो ये लोग निकले क्यों नहीं बाहर, जबकि हमने सारी अपोजिशन को वेलकम किया कि लेट्स कम ऑन, आए हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, जितने दूसरा हल्के खुलवाने हैं खुलवाएं। किसी ने एक भी पॉइंट आउट नहीं किया, जाके आराम से अपने सूबे में जाके ये लोग हुकूमत के मजे ले रहे हैं। तो इफ देल से तो हाँ, जो वजीर आजम साहब की आज की जो स्पीच है दैट वाज ओनली स्लिप ऑफ टंग। हाँ, लेकिन अगर इनके लोगों को भी फिर हमें जवाब देना होगा कि जब इन्होंने इनको शहीद कह दिया और करोड़ नहीं, आई एम सॉरी मुसर्रत साहिबा, आई डोंट थिंक सो कि दैट शुड बी अ कंपैरिजन, क्योंकि इस मामले के ऊपर ये हमारा ये बात बड़ी अजीब लगती है, ये बड़ी अजीब लगती है। थोड़ी सी खातून है लेकिन इज्जत करवाना इनके हाथ में है। मैंने आपकी बात आपसे बात ही नहीं कर रहा। नहीं बैरिस्टर साहब, नहीं मुसर्रत साहिबा, जो बात जो आपकी लीडर भी है खातून, जी बिल्कुल से बात करें। नहीं बैरिस्टर साहब, नादिया आप तो रहने के अपनी हद के अंदर हैं। ओके, मैं बड़ी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुसर्रत साहिबा, जो चीज अच्छी नहीं है, तमीज से बैठे। देखिए जो ऐवान में होता है वही फिर हम ये देखते हैं कि कहीं कोई एक हेल्दी डिबेट डिस्कोर्स हो नहीं सकता। आई वांट टू नो कि ऐवानों में भी यही बातें हो रही हैं, बाहर भी यही हो रही हैं, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। आपने कह दिया स्लिप ऑफ टंग, वेरी गुड, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नादिया आई एम गोइंग टू मूव। अभी आप इस पागल शख्स के ADHD के पेशेंट के आप जरा अल्फाज सुने, आप सुने कि ये चैनल के ऊपर बैठ के ये बंदा क्या बात कर रहा है। आप बोले चैनल के अंदर तरह से ये बातें कर रही हैं, किस तरह की आप बोले क्या ये खातून को ये जुबान देती है जिस तरह ये बोल रही है? जवाब देती है, सिर्फ खातून होने का फायदा उठा रही है, सिर्फ खातून होने का फायदा उठा रही है। और I cannot continue with this kind of language. I'm very sorry. I'm going to take a break. You guys have a glass of water. When we'll come back, we have to discuss what's happening in the parliament. वेलकम बैक। हम आ चुके हैं शो में वापस। डॉक्टर सईद इलाही हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, मुसर्रत चीमा साहिबा लाहौर में हैं। अनफॉर्चुनेटली बैरिस्टर आमिर हसन जा चुके हैं, बिकॉज आई रियली डू नॉट एक्सपेक्ट कि इस तरह की आपस में इतना झगड़ा हो कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को ना बर्दाश्त कर सकें और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानों तक चले जाते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एनी हाउ, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दिस डिस्कोर्स। डॉक्टर सईद इलाही, विद द रीशफलिंग ऑफ द कैबिनेट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो ऑपोजिशन है, चाहे वो PMLN और पीपल्स पार्टी की कंबाइन हो, सेपरेट हो, जैसा भी है, यहाँ ऐवान के मामलात भी नहीं चल पा रहे?
जलसों में जो ज़बान का इस्तेमाल है वो स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, मान लेते हैं, आई कैन कम्प्लीटली एग्री विद दैट। लेकिन इवन जिस तरह की गुफ्तगू होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, आप ब्लेम किसको दे रहे हैं, ऑपोजिशन को या हुकूमत को? देखिए, मेरा ख्याल में कि हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अपोजिशन का काम क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो अपोजिशन मोड में है, वो अभी तक अपोजिशन मोड से गवर्नमेंट मोड में नहीं आए, तो इसलिए हुकूमत में जाने के बावजूद भी इमरान खान साहब की जो आज आपने जिक्र किया तकरीर थी जलसे में, वो बड़ी काबिल एतराज़ थी। उससे पहले भी वो कई बार ये बात कर चुके हैं। इसी तरह आज आपने हमारे टीवी प्रोग्राम में देखा, जो मोहतरमा आज तशरीफ़ रख रही थी और हमारे बैरिस्टर साहब, उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। तो ये कल्चर है जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि ऊपर से इसका आगाज़ हो रहा है, नीचे तक आता है। तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ़िश स्टार्ट्स डिकेइंग फ्रॉम हेड। तो ये जो आगाज़ है लैंड स्लाइड, ये ऊपर से हो रहा है और मेरे ख्याल में अच्छा रिवाज नहीं है ये। इसमें हमारे ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत में मौजूद वज़रा और अहले इक़्तिदार, उन्हें तहज़ीब, तमद्दन और ज़ुबान की एहतियात का इजहार करना चाहिए और अपोजिशन को भी ज़ुबान तो मोहतात अख्तियार करनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह हक़ हासिल होता है कि वो हर चीज़ पे एतराज़ करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन भी, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की भी मैंने स्पीच सुनी, उसमें भी मेरी नज़दीक, मैंने ये पहले नहीं सुना करती थी, उन्होंने भी एक वर्ड यूज़ किया जो जाहिल आया, जो कि मेरे लिए काबिल एतराज़ वो तब भी था, बिकॉज यू नो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम यस, ना अहल होना या काबिलियत ना होना ये सब ठीक है, लेकिन बातें अब यहीं तक रह जाती हैं, इसके आगे नहीं जा रही। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि अपोजिशन ने आज ये इल्ज़ाम आयद किया, स्पेशली सईद गनी साहब ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती है कि इसी पर लगे रहो ताकि हमारी परफॉर्मेंस नज़र ना आए? ये सही कहा उन्होंने। देखिए, जहाँ इन्हतात का शिकार हैं सारी हमारी रवायात और पार्लिमानी रवायात, जिसका आपने जिक्र किया कि एक ज़माने में जो मेंबर्स होते थे वो बड़ी नस्तालीक ज़बान इस्तेमाल करते थे। अगर आप 52 से देखें, 49 से देखें बल्कि, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ असम्बलीज़ में अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छी बात करते थे, शेर व शायरी का जिक्र होता था, बहुत से नाम ले सकते हैं हम, लेकिन वो मफकूद हो गई है। और इन्हतात की वजह शायद इंतशार भी है कि जो इंतशार है सियासी, उसमें पार्टीज़ मुंतशिर हो रही हैं। PTI एक बहुत बड़े ऐलान के साथ आई थी, लेकिन उनके अंदर का इंतशार बाहर आ गया, जिसके नतीजे में आप देख रही हैं कि बहुत बड़े बड़े लीडर बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो ख़तरात से दो चार हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी भी है। ठीक है। तो जो वफाकी पार्टी जब खतरे का शिकार होती हैं, तो जो इंतशार है वो इन्हतात को तकवीत देता है। अच्छा, अब जरा मैं पंजाब की सूरत हाल पर आ जाती हूँ। बैरिस्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी एतमाद का इजहार किया CM बुज़दार साहब पर। उससे कुछ दिन पहले हमने MPS को भी देखा कि वो कर रहे हैं। विद इन द पार्टी व्हाई इज इट बीइंग डन ओवर एंड ओवर अगेन कि जी हमें CM बुज़दार साहब पर एतमाद है? क्या ये ऑपोजिशन को मैसेज दिया जा रहा है कि यू नो अगर आप चाह भी रहे हैं, आप तनकीद भी कर रहे हैं, तो कुछ होने को नहीं है? ये किसको दिखाया जा रहा है ये एतमाद? देखिए, अगर तो अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आए तो फिर तो ये अपोजिशन को पैगाम दिया जाएगा। सही। लेकिन जैसे मिनिस्टर्स ऊपर किसने हटाए हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। हफीज शेख साहब की आज तक इमरान नियाजी के साथ एक मुलाकात भी नहीं हुई है, ना वजीर बनने से पहले और ना बाद में, जिससे आप खुद अंदाजा करें कि ये सिलेक्शन कौन कर रहा है, ये आपके सामने है। मेरे ख्याल से उन्हीं को पैगाम देना चाहते हैं कि अब जो कोई सिलेक्ट करके पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का लेके आना चाह रहा है, हालांकि ये सारा जो एक्सरसाइज होती है एतमाद के वोट की, ये तो पहले नॉमिनेट करती पार्लियामेंट्री पार्टी। उस वक्त तो ये इस्तिखारे से नॉमिनेट हुए, उस वक्त तो ये नॉमिनेट हुए नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी को पता भी नहीं था कि बुज़दार साहब हैं कौन जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो आज की तो समझ नहीं आती। दूसरी बात नादिया, मैं अपनी गुफ्तगू के एक एक लफ्ज का हमेशा से ट्रायल रहा हूँ। मैंने जो गुफ्तगू यहाँ पे की है, मैंने कहा तलवे चाटना ये उर्दू का मुहावरा है, मैंने कहा पाँव पकड़ना ये उर्दू का मुहावरा है, मैंने कोई गैर इखलाकी जुबान कभी इस्तेमाल नहीं की। मैं एक खानदानी आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और आज भी आपके प्रोग्राम में आप भी एक खातून है, और जो खातून ने किया मैं माफ करता हूँ, इसके बावजूद कि जो जुबान उन्होंने इस्तेमाल की एक खातून के शायाने शान नहीं होती है। लेकिन मैं समझता हूँ, अब मेरी बात सुने जी पूरी, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का यही मसला है कि ये लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करते,
یہ لوگ ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے. ان لوگوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اچھا. سوائے گالم گلوچ کے, سوائے بد زبانی کے. اب دیکھیں نا, ابھی یہ فرما رہے تھے لوگوں کے کم ووٹ انہیں بڑے کھٹکتے ہیں. عمران نیازی واحد سیاستدان ہے جس کی ساری زندگی ضمانتیں ضبط ہوتی رہی ہیں, جو ضمانتیں ضبط کروا کے یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, I get your point. ہاتھ رکھا ہے, I get your point بیرسٹر صاحب. پہنچا مشرف کے دور میں بھی اور آج بھی. اوکے بیرسٹر صاحب, نادیہ پہلے میری بات پوری سنیں. میں نے آپ کے پروگرام کے لیے صبر بھی کیا ہے اور سنا بھی ہے. آپ کو پوری ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے. آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. ایک خاتون کے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. صرف میں ایک باعزت آدمی ہونے کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی ہے, اور میں پھر یہ چھوڑ رہا ہوں اس خاتون کے گھر والوں پہ اور اس خاتون کی فیملی کے اوپر کہ انہیں سکھانا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب دیکھیں, اوکے جو کچھ ہوا اس پہ تو میں کنڈیم, میں نے تو آتے کے ساتھ ہی کہا کہ یہ تو چیزیں ہونی نہیں چاہیے. بہرحال یہ ریکارڈنگ اور آپ پورا پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہیں, میرا ایک غلط لفظ بتائیں. اوکے بیرسٹر صاحب, اوکے بیرسٹر صاحب, اور جو ان کے لفظ ہیں وہ آپ دیکھیں. میں پھر کہتا ہوں بحیثیت خاتون میں بے نظیر بھٹو کے صدقے اس خاتون کو معاف کرتا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے معاف کیا. لیٹس موو فارورڈ. مسرت چیمہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ اس پر بالکل کچھ کامنٹ نہ کیجئے پلیز. لیٹس موو فارورڈ. مجھے صرف یہ بتائیے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بار بار جو اعتماد کا جو ووٹ کی بات کی جاتی ہے, یا اعتماد ہے ہمیں بزدار صاحب پر, یا پھر جو اختلافات کی باتیں ہیں ان کو آج ریسٹ کیا ہے چودھری سرور صاحب نے, کہیں نہ کچھ تو ہے جس کے وجہ سے یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب is the best. Why is the need? نادیہ, سب سے پہلے تو آپ بھی ایک عورت ہے, میں بھی ہوں. میں بالکل اپنی کلیئرٹی کروں گی اور میں بات کروں گی, اور یہ بات کرنی پڑے گی ہمیں. آپ ایک عورت ہے اور آپ نے سنا ہے, اور اگر آپ نے نہیں سنا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پرسنل میرے پہ اٹیک نہیں کیا تو میں بھی اپولوجائز کروں گی. لیکن میں آج آن ایئر اپولوجائز نہیں کروں گی. میں ان کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں جن کی وجہ سے یہ آج پالیٹکس میں ہیں, یہ ان سے پوچھا جائے کہ عورت ہونا کیا گالی ہے. اگر میں لاجک سے میں اور آپ بات کریں اور اس کے بعد ان کو جواب ان کے پاس ہو نہ, تو یہ کہیں کہ آپ ایک عورت ہے, آپ بات کیسے کر رہی ہیں, تو یہ ایک عورت کی سیاسی جماعت میں کر کیا رہے تھے. یہ اس میں کوئی سیاسی تربیت کی بات نہیں. انہوں نے مجھے بالکل ابیوز کیا ہے, آن ایئر کیا ہے, 2 دفعہ کیا ہے, اور وہ آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی. جہاں تک رہ گئی دوسری بات, اب یہ بڑے انوسنٹ ہو کے مجھے معافی دے رہے ہیں. معافی ان کو بالکل مانگنی چاہیے اور مجھ سے نہیں مانگنی چاہیے. یہ جو کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پبلک کے نمائندے, پہلے اپنی بیوی سے معافی مانگے, پھر اپنی ماں سے معافی مانگے, پھر اپنی بیٹی سے معافی مانگے, اور پھر اس ملک کی ہر عورت سے معافی مانگے جو ان کو ووٹ دیتی ہے. ان کی پارٹی کو تو ووٹ ملتا ہے, ان کو چلے نہیں ملے کوئی بات نہیں. آگے جہاں تک رہ گئی بات بالکل سیاسی رویوں میں, لیکن عورت کو چپ کرانا بہت آسان ہے کیونکہ وہ ایک عورت ہے. اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ بات کرنے کا یہاں پہ دیکھیں مسرت صاحب, جہاں تک رہ گئی بات, جب اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ٹی پی پھوں پھاں کرنے سے بات نہیں بنے گی. مسرت صاحبہ, I'm sorry. Now be quiet. I'm conducting this show, please. نہیں, میں کوئی زیادتی نہیں کر رہی. میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کس ایشو پہ بات ہو رہی ہے, اور آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں, آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ابھی تک آپ لوگوں نے سیٹل نہیں کیا. میں نے بالکل دیکھا ہے, میں نے بالکل دیکھا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. نا بالکل صحیح بات ہے. ایک سیکنڈ بات کرنے دیں. نہیں, 1 منٹ پہلے ذرا اب یہ بزدار صاحب پہ بات کر لیں, پھر آپ بزدار پہ بات کریے. اچھا, بزدار صاحب پہ اعتماد پارٹی کو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ ہمیں بالکل نہیں کہنا پڑتا, آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن افواہوں کا بازار گرم کرتی ہے تو اس کے بعد ہماری پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بھی ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز نے بزدار صاحب پہ اعتماد کیا, اور اس کے بعد گورنر صاحب نے بھی, چونکہ بہت زیادہ افواہیں تھی کہ شاید ہمارے بیچ میں کوئی ڈیفرنسز ہیں, ہمارے اسپیکر صاحب, ہمارے گورنر صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب, ہم سب ایک پیج پہ ہیں. ہاں, لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے کہہ دیا تھا نا, آن ایئر کہا تو وہ اپوزیشن نے تو نہیں کہا تھا نا, وہ تو چودھری سرور صاحب نے کہا تھا. تو اس لیے وہ بالکل دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب کی جو بات ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ وہ ایشو ریزالو بھی ہو گیا تھا. 2 لوگوں کا ایک پرسنل ایشو تھا. جہاں تک رہ گئی وہ تعلق ریلیٹ نہیں کرتا. اوکے, نو پرابلم, I get your point. بیرسٹر صاحب, نو, I'm sorry, آپ ہو یا مسرت چیمہ صاحبہ ہو, دونوں مجھے بلیم کیے جا رہے ہیں. لڑتے آپ لوگ ہیں, ایک دوسرے سے غیر پارلیمانی گفتگو آپ لوگ کرتے ہیں, اور آپ لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یک طرفہ پروگرام. نہیں, میں نے سنی بیرسٹر صاحب,
बता दें प्लीज। Barrister साहब, I have heard both of you. I have heard both of you. I'm very sorry, I've heard both of you. No, नहीं, let me. पहले पूरी बात सुने नादिया। मैंने सुन ली बैरिस्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर सईद इलाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हो गया आप लोगों को? I do not expect this from you. You are a barrister. डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, जरा हौसला करें, आप भाई हैं। चलिए डॉक्टर साहब, now you come to this. क्या ये ऑपोजिशन को बता रहे हैं जैसे ये हमेशा कहते रहते हैं? बात ये है कि हकीकत तस्लीम करना मुश्किल काम होता है। वो पंजाबी में कहते हैं बोरी में मोरी, यानी बोरी में अगर सुराख हो जाए, एक चावल का दाना निकल जाए तो बोरी खाली हो जाती है। तो इसका अमल का आगाज हो चुका है और बुज़दार साहब ये मेहमान है। आपको लगता है? जी, मेरी इत्तला के मुताबिक बार-बार इस जी बात की, हाँ, देखें, हमने गुज़श्ता हुकूमतों में कई बार देखा कि जो हुकूमत वादे करती थी, ऐलान करती थी, इनकी बात कंप्लीट होने दें बैरिस्टर साहब, आपको मौका देते हैं, सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। देखिए, पिछले करते ही रहते हैं, मुझे बात करने दें। आमिर साहब सिर्फ 2 मिनट दे दें, इसके बाद आपको मौका देता हूँ। मैं बुज़दार साहब के हवाले से बात कर लूँ, फिर अपना मौक़िफ़ पेश कर लीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि गुज़श्ता हुकूमतों में भी कहते थे हम मजबूत हैं, जा नहीं रहे, हम ये नहीं हो रहे, फलां नहीं हो रहे, लेकिन होता रहा। तो मेरी राय ये है कि बुज़दार साहब भी मेहमान हैं और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी जाएंगे और वो नैब के हवाले भी होंगे। और आज की जो प्रेस रिलीज आई है शाम में, जिसमें नैब ने बुज़दार साहब के खिलाफ तहकीकात की अप्रूवल दी है। जो नैब पंजाब के डीजी हैं, उनका बयान था कि हेलीकॉप्टर केस में और एक वाइन का जो ठेका है उसमें तहकीकात का आगाज किया जा रहा है बुज़दार साहब के खिलाफ। तो मेरा ख्याल में ये जो वजाहतें हैं, इत्मीनान का इजहार है, यकजहती है, साथ है, ये सिर्फ एक ड्रामा है और वही लोग जो ऐलान कर रहे हैं वही उनके खिलाफ हो जाएंगे और वही शायद बन भी जाएं। जी, बन भी जाएंगे, उनको खारिज करेंगे। क्यों बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि ये सीएम वाली पोजीशन जो है बड़ी इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन मार्क भी है इस पर? नादिया, मुझे आज बड़ी मायूसी हो रही है। मैं इतने आपके प्रोग्राम्स, 100 प्रोग्राम्स आपके, इसीलिए तो मैं हैरान हूँ बैरिस्टर साहब। मेरी बात सुने पहले पूरी। आप हैरान एक तरफा तौर पे हो रही हैं। नहीं, मैं नहीं हो रही एक तरफा। नहीं, पूरी बात तो सुन लेना, या फिर मैं सुन रही हूँ लेकिन आप ब्लेम नहीं करें। चलें, आप बताइए। पहली बात ये है कि उन्होंने, आपके पास क्लिप्स है, उन्होंने मुझे गालियां बकी हैं। सेकेंडली, उन्होंने वायलेंट एक्ट है, उन्होंने कप तोड़ा है, ग्लास तोड़ा है मेरे ऊपर, और आप लोग खामोशी से कुछ करना चाहिए था। आप इस मुल्क की औरतों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं मुसर्रत साहिबा, प्लीज। बेटी के लिए आप मुसर्रत साहिबा की आवाज बंद कर दीजिए। बंद कीजिए मुसर्रत साहिबा की आवाज। जी बोले बैरिस्टर साहब। नादिया साहबा, बात ये है, मैंने ये कहा कि खातून अगर जुबान देखे, कोई मर्द हो, एक बदतमीजी करे, दूसरा भी करे, लेवल हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक खातून के साथ मुझे बदतमीजी जेब नहीं देती। बिल्कुल और सही। ये शुक्र है खुदा का कि मैंने एक भी गंदा लफ्ज नहीं बोला, एक भी गाली नहीं बकी है। कि मेरे रब का करम है कि इस खातून ने मुझे इख्तियार दिलाया, मेरे ऊपर कप तोड़ा, ग्लास तोड़ा, बिल्कुल सही, गालियां बकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खामोश रहा कि मेरे अल्लाह का करम है मेरे पे, मेरी सियासी क़यादत का तरबियत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। ठीक है, लेकिन आपको इसे कंडेम करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कंडेम कर रही हूँ बैरिस्टर साहब, मैं इसको कंडेम, बिल्कुल मैं। किसने कप तोड़ा, किसने ग्लास तोड़ा, किसने गालियां बकी, आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को भी सू करूंगा। ये तरीका नहीं है, आप लोग गलत कर रहे हैं। आपने माफ कर दिया तो भूल जाएं, आपने माफ का ऐलान कर दिया। आपने जो कहा बिल्कुल का ऐलान दूसरा समझे। चले माफ कर दें, अल्लाह के रसूल के वास्ते माफ कर दें। I have to close the show, बैरिस्टर साहब, I have to close the show. You are right, आप ये वायलेंट एक्ट हुआ, बिल्कुल you are right कि आपके साथ गलत जबान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जहां आप गलत बात कह रहे हैं, आपने अपने माइक पे हाथ रख के जो कुछ बोला, वो सारी आवाज भी आई है। So I mean everywhere both of you have done और आप लोगों ने स्कोर सेटल कर लिया है। So you should not implicate us in this. इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सियासत में किसी ना किसी तरह ये बर्दाश्त का मादा आए, वरना अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते, कोई सहर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती, और माजरत के साथ ये जो कुछ भी हुआ आज शो में नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।